Welcome to my YouTube channel Study Point 11. Today we are going to talk about a topic that's past continuous. Okay, earlier we discussed about the past indefinite, or which is also called the past simple. These two are the kinds of also the past tense. Okay, when we start to talk about the tense, we saw that there are three kinds of tenses: present tense, past tense, and the future tense. We completed present tense and its subordinate. Then I started to teach you the past tense. Okay, what actually was past tense? An action which was done. That action can be represented in the past tense. We have completed, we done in the past, past simple. Okay, or which is also called the past indefinite. Today we are going to talk about the past continuous. आज हम बात करने जा रहे हैं past continuous. Past continuous होता क्या है, इसके बारे में बात पहले देखेंगे. past continuous जो होता है, इसका अल्टरनेटिव नेम है past progressive, यानी कि वो काम जो जारी था पास्ट टेंस में. ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम स्टेटमेंट्स कुछ देखते हैं, इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, सपोज मैं देखता हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं खेल रहा था. ये जो स्टेटमेंट्स मैं कह रहा हूँ, ये मैंने हालांकि ये जो स्टेटमेंट ये कंप्लीट है, ये मुकम्मल है, मगर हुए तो कब, किस में, पास्ट टेंस में. मगर अगर ये कंप्लीट हुए हैं, फिर फ़र्क क्या है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस क्या. पास्ट सिंपल का हमें इन्फ्लुएंस ही नहीं होता था, हमें इम्पैक्ट नहीं होता था उन कामों का. ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें भी इम्पैक्ट नहीं होता है, मगर इसमें जो वो काम थे, वो काम क्या कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त तक जारी होते हैं, कुछ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पास्ट टेंस में. ठीक है, वो भी ये चीज़ें भी, ये काम भी, ये जो स्टेटमेंट्स हम कहते हैं, इनको भी ये भी मुकम्मल होते हैं किसमें, पास्ट टेंस में. फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन डेफिनेशन टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड. सपोज व्हाट डज पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव मीन? Any action which was continue for some period of time, at a period of time, can be represented in the past continuous. Fine. Suppose I say I was writing a letter. I was not writing a letter. Was I writing a letter? Wasn't I writing a letter? Fine. Okay. I just use here different statements: subject, helping verb, fourth form of verb, then object. Earlier we were discussed about its formation. हम इससे पहले हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन की, हम कैसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं. मैंने पहले ही बोला है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए. और इससे पहले फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूँगा पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, या जो भी कंटिन्यूअस होता है. मैंने बोला है कि पास्ट जो भी कंटिन्यूअस होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. हर कंटिन्यूअस में हम करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज हियर. जो भी हमें कंटिन्यूअस होते हैं उसमें हम करते हैं V1 प्लस fourth form of verb, ing. So this becomes fourth form of verb. So past continuous, or which is also called the past progressive. Fine. An action which was continue for some period of time or at a point of time is known as past continuous, or which is also called the past progressive. We have two auxiliary verbs. यहाँ पर हमें दो auxiliary verbs है. क्या क्या? Was and were. Was जो है it is used with subject singular. ये subject singular के साथ इस्तेमाल होता है. Were जो है it is used with subject plural. ये plural. These two are actually called helping verb or auxiliary verbs. ये past continuous के helping verb होते हैं या auxiliary verbs होते हैं. Now we will make some sentences. I can take any subject to use with these after that helping verb, then fourth form of verb, then object. पहले मैंने subject लेना है. अगर मैं singular लूँगा तो मैंने इस्तेमाल करना है क्या, was. अगर मैंने plural subject लिया तो मैंने इस्तेमाल करूँगा were. Suppose मैं लूँगा I. यहाँ पर exceptional case नहीं है, इससे पहले हमें exceptional case होता था I, क्योंकि ये वो auxiliary verb carry करता था जो हमें इस्तेमाल होता था किनके साथ, plural subjects के साथ. बट यहाँ पे हमें कोई exceptional case नहीं है. I is it is and singular and it is used with was here. आई जो है ये सिंगुलर है ही, बट यहाँ पर इस्तेमाल होता है किसके साथ, वाज के साथ. सपोज मैं लूँगा सब्जेक्ट ही, लूँगा सब्जेक्ट ही वाज, क्योंकि वाज क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये लेता है किसके साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ. ही वाज ईटिंग फूड, ही वाज नॉट ईटिंग फूड. वाज ही ईटिंग फूड, वाजंट ही ईटिंग फूड. तो मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया. अगर सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर. दे वर playing a game, they were not playing a game. Were they playing a game? Were not they playing a game? So these statements help you to speak more about the past continuous. अच्छा, हो गए ये भी. I hope you understand about the when I express different type of statements कि ये काम जब हम कोई काम जारी होता था past tense में, तो हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. अगर कुछ लम्हे तक या कुछ वक्त तक, थोड़ी देर के लिए अगर वो जारी होते थे, किस में जारी होते हैं, past tense में, मगर वो भी मुकम्मल हुए हैं, उनको हम कहते हैं किस में, past continuous में.
में। अच्छा, अगर दो एक्शंस होते हैं, हमें कहने होते हैं कि इसमें पास्ट टेंस में, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कैसे हम कहते हैं, उन एक्शंस को हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, पहला एक्शन पास्ट कंटिन्यूस होगा, दूसरा हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। फाइन, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट टेंस, फर्स्ट एक्शन शुड बी रिप्रेजेंट इन द पास्ट कंटिन्यूस, सेकंड एक्शन शुड बी रिप्रेजेंट इन द पास्ट सिंपल. It makes your language beautiful. Suppose I say, I was watching television when my mother called me. ओके, मैं उस वक्त टेलीविज़न देख रहा था, मैं टेलीविज़न देख रहा था जब मेरी माँ ने मुझे कॉल की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई एक्सप्रेस इन द पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज वाचिंग टेलीविज़न, आई वाज वाचिंग टेलीविज़न। फाइन, दूसरा व्हेन माय मदर कॉल्ड मी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो आई यूज्ड हियर पास्ट सिंपल। फाइन, सेकंड स्टेटमेंट। और पहला जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल क्लास बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास। व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लास, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लास। हो गया, आया समझ? ओके, इफ टू एक्शंस आर is going to be expressed in the past, first action should be represented in the past continuous, second action should be represented in the past simple. Okay, these actions can also be expressed in the past continuous. अच्छा, if two actions are simultaneously in the past tense, those actions can also be spoken in the past continuous. अगर दो actions जारी होते हैं past tense में, similar simultaneously एक साथ चलते हैं, तो हम उनको भी express करते हैं किसमें? past continuous. Suppose the patient was crying when doctor was sleeping. Fine. So this statement is expressed in the past continuous. Fine. Hope you understand. If you like this video, do subscribe and share with your friends. Thank you.